मैं उस कुल मालक परमात्मा सावण कृपाल ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਦਾ ਜਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਦਇਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਭਟਕੇ ਜੀਵ ਕਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੋਂ ਅਭਿਆਸ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਖਿਆਲ ਸਾਡਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਹਿਰਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਸੋਇਆਂ ਦਾ ਵੀ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਕਿਰਪਾਲ ਦੀ ਦਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਦਾ ਪਦਾਰਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਲੇਖਨੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਖਾਸ ਕਰ ਦਸਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਵਾਧਾ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਗਈ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਘੱਟ ਵੱਧ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਔਰ ਝੂਠ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀਆਂ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਬਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਉਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਸੀ। ਬੜੀ ਇਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਸਤਸੰਗ ਦੀ, ਕਰਨੀ ਦੀ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਾਲਾ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮ ਦੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਕਿਤਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਮ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕ੍ਰੋਧ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੋਭ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਰਜ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਕੋਲੇ ਜਾਓ। ਕਿਹੜੇ ਮਹਾਤਮਾ ਕੋਲੇ? ਜਿਹਨੇ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੀ ਹੈ, ਮਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੁੜਿਆ ਹੀ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਮਾਤਾ ਨੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਥ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਭੈਣ, ਨਾ ਭਾਈ, ਨਾ ਧਨ ਦੌਲਤ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਥ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਅਗਰ ਸਾਥ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਨਾਮੇ ਕੋ ਸੰਗ ਨਾ ਸਾਥੀ, ਮੁਕਤੇ ਨਾਮ ਧਿਆਵਣਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਅਮੁੱਲ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਬਗੈਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਗਾ।
आप प्यार ना कहते है, पढ़ पढ़ थके शांत न आए, बिन सतगुरु कोई नाम न पाए, प्रभ ऐसी बनत बनाई है। ये उस परमात्मा ने कानून नहीं बना दिता है कि तुसी जिन्ना मर्जी पढ़ लो, थक जाओ, चूर हो जावो, थोड़े मन में शांति नहीं आएगी। पढ़ पढ़ा के तुसी नाम प्राप्त नहीं कर सकते। बिन सतगुरु कोई नाम ना पाए, प्रभ ऐसी बनत बनाई है। ये कुदरती कानून उस परमात्मा का खुद ही बनाया होया है। वो खुद ही आप किसी ना किसी इंसान दे विच अपनी कला रखता है, अपनी ताकत रखता है। महाराज सावण सिंह कहते होंगे कि असीं उहनूं ताकत भी नहीं कह सकते गे, ताकत भी मिनी जोखी हुंदी है। वो जो कुछ हुंदा है सो हुंदा है। वो एक बरूपिया की तरह हुंदा है, बाहरों बहुत छोटा जीवन बतीत करता है, अंदरों उस प्रभु परमात्मा दे नाल जुड़िया हुंदा है। परमात्मा ने भगती का पदार्थ उसनूं दिता हुंदा है। इस वास्ते आप प्यार ना कहते हैं कि भाई रे गुर बिन ज्ञान ना होए। गुरु अर्जन देव जी महाराज, गुरु नानक देव जी महाराज तो बड़े प्यार ना कहते कि हे प्यारिओ, गुर बिन भगत ना होए, पुछो बर में नारदा वेद व्यासा कोई। तुसी बर्मा दे प्राण पढ़ के देख लो, जो नारद दे सूत्र है उन्होंने पढ़ के देख लो। पुछो बर में नारदा वेद व्यासा कोई। व्यास ने 18 प्राण 4 वेदां नूं मथ के लिखे। 4 वेदां दे अंदर विच भी नाम दी महिमा है कि नाम तो बगैर मुक्ति नहीं। और ये लिखिया उहदे विच कि रिखी मुनि तो बगैर नाम नहीं मिलदा गा। किते उन्हां नूं संत कहता, किते गुरु कहता, किते साध कहता, किते रिखी कहता, मुनि कहता। सो इस वास्ते आप प्यार ना कहते हैं गुरु दी महिमा है। तीसरी सतसंग। सतसंग दे विच आके सानू साड़ियां गलतियां दा पता लगता है। जदों महात्मा सानू साड़ियां गलतियां दसदे है, मैं दसदा हुंदा कि सिर्फ 2 प्रकार दे आदमी साड़ी गलती दस सकते हैं। एक तो जो साडा विरोधी है, उन्हें तां अनचक अलाणियां कह देना कि तेरे अंदर नुक्स है। हुण कायदा ते है कि असीं उहदा धन्नवाद करिए कि सानू उसने साडा नुक्स दस्या। आपां की करदे हैं कि उस दे नुक्स मनण दी बजाय, कड्ढण दी बजाय उहदी विरोधता करदे हैं। तो संत महात्मा कहानी पा के कह दिंदे हैं बे आ ऐब छड्डो, परथाए साखी महापुरख बोलदे, सांझी सगल जहाना है। वो किसी का नाम नहीं लेंदे, वो सांझी बात कि ये बुराइयां, क्या औरत क्या मर्द, चाहे किसी भी समाज का, किसी भी मुल्क का है, ये बुराइयां हर एक नूं घेरी बैठियां कि काम है, क्रोध, लोभ, मोह, हंकार है। हर एक जगह जिथे मर्जी चले जाओ, मौत पदै सब कुछ थानू मिले। इस वास्ते संत महात्मा बड़े प्यार ना वो सानू समझाउंदे है कि सत्संग तो उन्होंने इसे वास्ते जोर दिता कि सत्संग तो बगैर सानू सोझी नहीं आउंदी गी। भागवत पुराण दे अंदर कथा आउंदी है कि एक बकरी ते शेर चपटन लग्या, वो लम्मी पै गई, अपनी बोली च लगी करन छरन छरन। वो जानवर ने उसनू आजाद कर दिता कि बुढ़ी बकरी है, इन्हें मेरी शरण मंगी है, ये शरण विच आई है। उन्हें हाथी नू हुक्म दिता बई तुसी इसनू जो पानी पिया के लियाने, पानी पीण जाने, अपनी पिठ से चुक के ले जाया करो, और इसका खाने का भी इंतजाम तुसी करना है।
तो हाथी जदों पानी ते जांदे उस बकरी नूं अपनी पिठ ते बिठा के ले जाना, या जेड़े फल वो खा नहीं सकती सीगी, हाथी दे उपर बकरी हुंदी सी, वो हाथी ने उहदे नीचे जाके खड़ जाना भी आसानी ना खा ले। एक आधा प्रताप है बई शरण दा। तो शेर ने शरण आए नूं आपदी ओहदी लाज रखी। इसे तरह जब असीं सच्चे दिलों किसी कमाई वाले महात्मा की शरण लेने हैं, उन्होंने भी साड़ी लाज हुंदी है। जो नामदान दे वक्त वो साडे नाल वायदा करता है, वो वायदा जरूर निभाउंदा है, लेकिन जेड़ियां सिख दे अंदर कमियां हन जां जिन्ना को कर सकता है, कुछ शिश दियां भी ड्यूटियां हन जेड़ियां उन्होंने दसियां जांदियां हन भी इतना कारोबार करना है। जे नाम लैके फिर भी मन इंद्रियां दा गुलाम रहा, शराबा कबाबा च लग्या रहा, तो गुरु विचारा की करे जे सिखन में चूक, अंधे एक न लगी जो वास बजाई फूक। तो सत्संग हर महात्मा ने गाई है। कबीर साहब कहते हैं, कबीरा संगत साध की अंत करे निर्भा। अगर अंत वेले सानू सहाई होने वाली है तो उस महात्मा की संगत है। सत्संग दे अंदर एक कहानी महाराज सावन सिंह भी सानू समझाते रहे, महाराज कृपाल, मैं भी थानू कई दफा सत्संग दसी है कि एक महाजन सी, वो आपदी असामी तो कुछ पैसे लैण वास्ते गया। उसने जो कुछ भी उहदा घर दे अंदर माल सी सब कुछ कर लिया। एक पैसे दी उस दे नाल उसने कोई रैत ना की। तो जट ने सोचा भी इसने मेरे ते कोई उपकार नहीं किया, कोई छोट नहीं छोड़ी, मैं इसका जिहड़ा बिस्तरा है वो चुक के स्टेशन ते छड्ड के नहीं आऊंगा। थानू पता है कि जिमीदार दी नाराजगी तो डरदा कोई उहदा समान होर ना चुके। तो वह शाहूकार कहे भी कोई मेरा स्टेशन ते बिस्तरा छड्डिया वे, मैं उसनूं मजदूरी दे दूंगा। उत्थे महात्मा आ रहे सी, अच्छी कमाई वाले सी, अंदर जांदे सी। तो वो आदे भी मैं ही तेरा मजदूरी का काम करता है, पर एक शर्त की मैं मजदूरी लूंगा, अगर वो मंजूर है तो तू कर लै। कि या तो तू कथा करी, मैं हूं करता जाऊंगा, तो या मैं कथा करता जाऊंगा तो तू उंगारा हूं करता जाई। तो महाजन ने सोचा भी ऐदू सस्ता होर सौदा केड़ा है। वो कहता भी तू कथा करता जाई, मैं हूं पिछे करता आऊंगा। अखीर जब स्टेशन नेड़े आ गया, महात्मा के दिल विच दया उठी भी मेरे साथ इतना चिर इन्हें सोबत की है, जो मैं कथा करता आउंदा सीगा उही वायदा करता आया, हंगारा हूं कहता आया है। तो महात्मा की कथा केड़ी सी बई चोरी छड्ड दे, भैड़ा खोटा कर्म छड्ड दे, वो हूं कहता सी, शराब छड्ड दे, वो फिर आखे हां। जो भी महात्मा ने तो ऐब ही दसने सीगे, महात्मा की कथा ही ये हुंदी है। वो वायदा करता आउंदा सीगा। जदों स्टेशन नेड़े रह गया तो महात्मा ने सोचा ये की जानेगा भी मैं किसी पूरे महात्मा की संगत की सी। वो ओनू कहन लग्या, देख भी प्यारिया, तेरा सारी जिंदगी का आहा ही एक शुभ कर्म है। तो तेरा टाइम बड़ा नेड़े है, जमदूत आउणगे तेनू फड़ के ले जाणगे। अगे धर्मराज जो न्याय का देवता है वो तेनू पूछेगा भी ये दो घड़ी का जिहड़ा फल है ये पहला लेना है या पिछों लेना है। तो उन्होंने कह दी भी मैनू ये जिहड़ा फल है पहला दे दो।
वो तेनू मेरे को भेज देणगे, बस फिर मेरी जिम्मेवारी है। इसे तरह होया जब वो न्याय दे देवता धर्मराज दे पेश होया, जमा ने कीता, वो कहंदा भी होर तां सारी जिंदगी कोई नेक कर्म ही नहीं कीता, बस आ इको ही है, सत्संग का फल कद लेना है। वो कहने लगा जी फिर की पता है, मैनू पहले ही दे दो। जद उसनू उथों लिया, वो महात्मा दे कोल ही ले जाना सीगा, तो वो जदों अंदर सचखंड की हद आ गई, अगे जम जा नहीं सकते सीगे, सेक आउंदा सी। वो कहंदे भी देख इदू गाहां चलिया जा, तेरा इतना टाइम है, असी इसे थां ही बैठे हैं, तू वायदे मुताबिक आ जाना है। वो जम उत्थे बैठ गए, वो महात्मा दे जा पेश होया। हुण वो बैठा, महात्मा ने पूछा आ गया है, और निगाह पीछे है। अखीर महात्मा पूछण लगे तू उधर किधर झाकदा है बई? कहंदा जी वो खड़े है ना, वो वायदा करया मैं उन्हां नाल, मैनू फिर वो मारनगे। कहण लगे हुण तैनू कोई मारेगा नहीं, तू चुप करके आपदा मेरे साथ तुरया। इत्थे उन्हां दी ताकत नहीं। हुण तुसीं देख लो कि महात्मा दा तन जिहड़ा सी वो तां संसार विच सी, लेकिन अंदरों दी संभाल मालिक दे दरबार कर रहा सीगा। इस वास्ते वो बरूपीए है। तो आप प्यार ना कहते हैं कि इस वास्ते महात्मा ने सत्संग की महिमा, गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं, मेरे माधो जी सतसंगत मिले सो तरया, गुर प्रसाद परमपद पाया, सूके काष्ट हरिया। जिस साडा मन जिहड़ा है ये जन्मां जन्मांतरां दा विषय विकारां दे विच आके, मैं मेरी दे विच आके खुश्क होया बैठा है, घर नूं भुल गया है। जद साधु संगत दे विच जांदा है, उत्थे महात्मा इस मन दे मतलब ही दसदे है कि किस तरह तुसी इस मन जिहड़ा है, ये भी एक कोई छोटी जी ताकत नहीं, ब्रह्म दी अंश है, त्रिकुटी दे रहन वाला है। ये आपदे ठिकाने तो भुल गया, जैसे आत्मा सचखंड तो ये वस विच आ गई है, तो मन आपदे ठिकाने तो भुल गया है। तो महात्मा वो साधन तरीका दसदे है कि किस तरह ये पागल मन नूं तुसी सिमरन दे जरिए 9 द्वारे खाली करके तुरिया पद बरम दे विच पहुंचाओ। ਇਹਦਾ ਉਹ घर है, हैडक्वार्टर है। ਜਦੋਂ मन ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ है, ਇਹਨੂੰ पता लगता है कि मैं किड्डे घर ਦਾ मालिक सी, मैं तो ਐਵੇਂ विषय विकारां ਦੇ जंगल ਵਿੱਚ पागलों की तरह पाਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। साडी आत्मा इसके पंजे तो आजाद हो जाती है, या असीं कह सकते हैं रूह और मन की गंढ खुल जाती है। पार ब्रह्म दे विच जा वड़दी है, क्योंकि आत्मा के उपर जितने भी ढक्कन सन, गुलाब पिंजरे सन, स्थूल सूक्ष्म कारण, ये सारे लै जाते हैं। उत्थे आत्मा नूं भी जद इहदा प्रकाश 12 सूरज का हुंदा, इस नूं पता लगता है कि मेरा भी कोई परमात्मा है। मैं दसदा हुंदा कि लिंग भेद उत्थों तक ही है, औरत और मर्द का। अगे कोई नहीं कह सकता कि औरत है या मर्द है, या अमरीका दे रहने वाला है। उत्थे जो भी पहुंच जाता है उसनूं साध गति प्राप्त हो जाती है। सो इस वास्ते आप प्यार ना कहते हैं कि यह सारा कुछ कद पता लगता है, जब असीं महात्मा की संगत और सोबत दे विच जाने हैं। स्वामी जी महाराज ने भी कहा, करो अरे कोई सत्संग आज बनाए। इंसान का जामा है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ
अगर कोई उत्तम तो उत्तम कलयुग के अंदर साधन है, तीर्थ है, महात्मा की संगत है। तो गुरु नानक देव जी महाराज कहते भी संगत कास नूं कहंदे है, दुनिया के इकट्ठ नूं संगत नहीं कहंदे गे। या पिछे कोई राजे महाराजे हो चुके हैं, उन्हां दीयां कथा कहानियां संत नहीं सुणाउंदे गे। तो ना एक किसी दी सत्संग दे अंदर निंदिया ही करते हैं। महात्मा तो सिर्फ नाम का प्रचार करते हैं। सत्संग की महिमा, नाम की महिमा वो सानू सुणाउंदे हैं। जिस तरह अजकल रिवाज है, तीर्थां दे उत्ते किस तरह मेले लगते हैं, सियासी कानफ्रेंसां हुंदियां हन। तुसीं सोच के देख लो उत्थे किन्ने किन्ने सिनेमे हुंदे है। असी जांदे तां उत्थे मैल लाउण वास्ते हैं, लेकिन उत्थों होर चढ़ा लियाउने हैं। एक दफा पार्वती ने शिवा नूं पुछया, गंगा का पुरब लग्या सी, अगे जी इन्हां नूं तां बड़ा ही पुन मिलदा होएगा, गंगा नहाउण जांदे है। वो कहंदा हाँ, मैं तेन तजर्बा करा देना है। पार्वती तो जैसी सी वैसी रहन दी जवान, तो आप एक बुढ़ा बुजुर्ग बन के बैठ गए। हुण पार्वती जिहड़ी सी राजे दी लड़की सी, बड़ी अच्छी सी, भगवान ने शक्ल दिती हुई सी। हुण तुहानू पता ही है कि जिहड़े लोग तीर्थां नूं फिर जांदे है, कोई उत्थे समझाउण वाला तो हुंदा नहींगा भी पराई औरत नूं अख नाल देखना किन्ना गुनाह है, किन्ना पाप है। तो उत्थे से सिर्फ टुबकी लाउणी तीर्थ दे विच असीं जाणदे हैं। वो जेड़ा नंगे भी एक एडा बुढ़ा है, इहदे कोल जवान औरत बैठी है, की गल है? वो कहे तू इत्थे बैठी है, सारा दिन नंगे गए, कोई कुछ बोले कोई कुछ बोले उसनूं, सारे दिन भी दी एक आया। उन्हें आके उन्होंने क्या, माता तू इत्थे बैठी है, दिन छिप रहा है, ये बुजुर्ग तेरे साथ है, चलो मैं सहारा दिना है बुजुर्गां नूं, ते तुसी हिम्मत करो, जिथे चलना है मैं थानू पहुंचा के आना है। वो तो एक कौतक सी शिवा दा। थोड़ी दूर गए अलोप हो गए, तो शिवा ने पार्वती नूं क्या, क्यों देखिया? सिर्फ सारे दिन भी लखों आदमी गए, तो फल लैन वाला सिर्फ इको ही आदमी सी जिन्हें शुभ कर्म बनाया। तो महात्मा ने सत्संग की महिमा बड़ी ऊंची करके गाई है। केड़ी सत्संग? आप कहते जै सतगुर तै सत्संग बनाई। प्यारियो, कोई संगत गुरु नहीं बना सकती गी, अगर बनानी है बनाएगी तो उन्होंने तारेगा किवें? वो तो इस तरह ही हुंदा है जिस तरह आप मूर्ति नूं घड़ के उसनूं इंसान की शक्ल दे दिंदे चफेरियों, फिर उस उत्ते फुल पत्तियां चढ़ाउंदे आ, उस तो मुराद भालदे हैं। तो कमाई वाले जो संत हुंदे हैं, जिन्हां ने शब्द नाम की कमाई करी हुंदी है, वो संगत खुद बनाउंदा है। जै सतगुर तै सतसंग बनाई। तो गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि परमात्मा ने उन्हों खुद अपनी तरफों भेजा हुंदा है कि इतने जीवां नूं तां नाम देना है। हुण उन्हां नूं आपदे पास बुलाएगा
या उन्हां दे पास खुद जाएगा या किसी का जरिया बनाएगा, तद ही वह आपदे गुरु का संदेश देवेगा, वह परमात्मा का। जदों साडी अख खुल जाती है, महाराज सावण सिंह कहते हुंदे सीगे कि असीं कहने असीं भजन बैठते हैं, किन्ना चिर बई जिन्ना चिकर अखां बंद हन। जदों खुल जांदियां फिर पता लगता कि सानू कोई भजन बिठाउंदा है। ये किरपा गुरु दी सी, वो बिठाउंदा सी, रोज उदम दिंदा सी, अंदरों चाबी मरोड़दा सी। फिर कि असीं कहने असीं सत्संग दे विच जाने हैं, तो महाराज जी कहते होंदे उतना चिर ही कहने हैं जिन्ने दिन असीं साडियां अखां बंद है। जद खुल जांदियां हन तो फिर पता लगता है कि सत्संग दे विच कोई बुला रहा सीगा सानू। असीं पुतली दी तरह है। आ तुसीं शब्द पढ़दे हो, जिथे भेजे उत्थे जावां, तेरा दिता सदा ही खावां। ये असीं उस वेले कहने हैं कि जद सानू ये सोझी आ जाती है उन्हां गुरुआं दी दया नाल कि ताणे च भी वो है, पेटे च भी वो है, रूह च भी वो है, ते सूर च भी वो है, सदन वाला भी वो है, बिठाउण वाला भी ये है। गुरु नानक ने भी कहा, आपे संगत सद बहाले आपे विदा करावे। वो आप ही संगत नूं सददा ते आप ही विदा कराउंदा है, आप ही उन्हां नूं खाना खवाउंदा है, आप ही अगों सीसां दिंदा है कि तेरे भंडारे भरे भरपूर रहन। जो कुछ है वो सब कुछ वो खुद है, लेकिन इस राज नूं असीं समझ नहीं सकते जिन्ना चिकर असीं अंदर नहीं जांदे। तो गुरु दे सत्संग विच, संतां दे सत्संग दे अंदर कदे किसी दी निंदिया नहीं हुंदी, बल्कि निंदिया तो सानू परहेज कराउंदे है। मैं कहना हुन्ना कि निंदिया करनी तो अपने मन दी करिए, क्यों बई ये सानू नरक च ले जांदा है ते भैड़े खोटे कर्म कराउंदा है। तो वडियाई करनी है तो अपने गुरु दी करिए, जिन्हां ने सानू ये ऐबां तो बचाउणा है और बचाउंदा है। सो हर महात्मा ने सत्संग की बड़ी महिमा गाई है। थोड़े अगे छोटा जिहा शब्द दो लाइनां दा रखिया जाता है गुरु अर्जन देव जी महाराज का, कि सानू सत्संग दे विचों की प्राप्त होया, सानू की समझ आई, किन्नी साडे गुरु ने जिहड़ी दया कीती वो सत्संग दे जरिए कीती है। गौर न सुनो। कांदड़ा महला पंजवा, संतों की बाणी, पन्ना 205। बिसर गई सब तात पराई, जब ते साध संगत मोहे पाई। बिसर गई सब तात पराई, जब ते साध संगत मोहे पाई। हुण गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं कि सत्संग का की फायदा होया, जिहड़ी पराई ईर्षा सी मेरे अंदर, जलन सी, क्योंकि साडे अंदर जिहड़ी जलन हुंदी है, किसी नूं तरक्की करदे ना देखना, किसी नूं खुश ना देखना। मैं एक कहानी दसदा हुंदा है, क्योंकि पुराणा दे अंदर ऐसियां कहानियां आ मिलदियां हन, क्योंकि कहानी का मतलब इतना हुंदा है कि सानू उहदे नाल प्रेरणा मिल जाती है। होर संतां नूं सच जां झूठ दा मतलब नहीं हुंदागा, सिर्फ सानू कहानी तो प्रेरणा मिल जाती है। किसी वक्त किसी जट ने भगती की शिवां दी, तो घरे उस दिन काफी तंगी सी, तो शिव प्रगट होए
उसने अर्ज की थी कि घर दे अंदर बड़ियां तकलीफां हन, रोजी रोटी नहीं। उन्होंने खुश होकर उन्होंने घंटी देती, बई तेन किसी चीज की वस्तु की जरूरत है तो घंटी बजा दी, सब मिलेगा। पर याद रखी तेरे पड़ोस वाले दे ये तू दुगना च रह जाएगा। हुण पहला तो वर लेके जट जिहड़ा सी बड़ा खुश होया, बई घंटी बजादा करे किसी चीज की लोड़ होगी। जद ये क्या भी तेरे पड़ोस वाले दे दुगना जाएगा, इत्थे आके जट नूं बड़ी समस्या हुई, बई भगती मैं कीती ते पड़ोसी दे दुगना जाए। तो घर वाली नूं आके उहदे फायदे तो दसे, बई शिवा ने बड़ा अच्छा वर दिता है, पर कहने लगे आ कुछ मेरे जचिया नहीं गा। जिहड़ा ये किया भी पड़ोसी दे दुगना जाए, वो अच्छी सीगी घर वाली, क्योंकि सारे असी इक्को जिहे कर्म नहीं साडे हुंदे गए। जिन्हां दे अच्छे नेक कर्म हुंदे उन्हां दा बड़ा ख्याल अच्छा हुंदा है। वो कहंदी कोई गल नहीं, अगर अपने पड़ोसी आराम नाल वसणगे आपां नूं बड़ा अच्छा होएगा, चंगे पड़ोस दा फायदा ही है। वो कहंदा कदी हो सकदी है। तो शिवा ने भी देखिया भी भला इसका कित्थों तक विश्वास है, मंगदा है या नहीं मंगदा। उन्हें हर किस्म की औकड़ो जट ते लियाती। अखीर जट घर छड्ड गया, पर उन्हें घंटी ना बजाई। उहदे पिछे जाण तो बाद वो घर वाली स्वाणी ने, पत्नी ने सोचा भी चलो जो गवांढियां दे चलिया जाएगा, साडे पड़ोसियां दे ते की हो गया। उसने नहा धो के शिवा अगे अरदास की थी कि देखो जी मैं भी उसकी हरदंगी है। आखिर जो थोड़ी सेवा करता हुंदा सी, मैं उहदी सेवा करदी हुंदी सी। मेरे कहा सानू तुसी दिओ अंतन। हुण उत्थे बड़ा रिजक आया, पर जिहड़े पड़ोस वाले सीगे उन्हां दे उदू ज्यादा आया। कुछ वक्त पाके जद जट घरे आया, देखिया घर तो आपदे भी रंग लगे हुए, पर पड़ोसी दे उस तो दुगने। वो गया घर वाली ने पहले तो गुस्से होया कि तू ऐसा क्यों किया। तो बथेरा उन्हें समझाया। उन्हें बड़ी जल्दी जल्दी नहा धो के घंटी बजाई। शिव कहने लगे दस भाई की जरूरत है तेनू, तू घंटी बजाई है। वो कहंदा मेरे बार दे विच खूह लग जे। तो हुण जिहड़े पड़ोस वाले से उन्हें दो लग गए। कहंदा मेरी अख फुट जे। हुण पड़ोस वाले दियां दो फुट गईयां। ईर्ष्या आ है, आप भी दुखी होना। क्यों भाई, जिहड़ा ईर्ष्या करदा कोई सुखी थोड़ो है। महाराज सावड़ सिंह कहते हुंदे सीगे भी जिहड़ा ईर्ष्या करने वाला है, वो कहंदा है मेरी बेशक मझ मर जे पर ताए दा कट्टा जरूर मरे। तो गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते साडा की फायदा होया बई, विसर गई सब तात पराई। हुण जिहड़ी साडे अंदर ईर्ष्या सी, किसी नूं वेख के जलना सी, तो कहंदे जिद्दे दी सानू साधु संग मिली गुरु रामदास दी, उहदे दी सानू ये सोझी आई, समझ आई कि भी देने वाला तो परमात्मा है। अगर परमात्मा दूसरिਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ है, शायद साडे नालों वो काबिल ज्यादा होएगा, वो अच्छा होएगा। असी उहदे जैसे अजे काबिल नहीं बने भी असी भी उहदे जैसे काबिल बणीए। तो परमात्मा की तो किसी दे नाल कोई दुश्मनी नहीं, वो तो सब वास्ते आपदा बूहा खुला रखता है, कोई उथों लवे। 25 साल महाराज कृपाल ने होका दिता भी देने वाले का कसूर नहीं। तो 45 साल सच्चे पातशाह महाराज सावड़ सिंह ने होका दिता भाई देने वाले का कोई कसूर नहीं। हुण जैसा जैसा साडा बर्तन सीगा वैसी वैसी
वो महात्मा वस्तु पा गई है। इस वास्ते आप प्यार ना कहते हैं जो जो असी मंगते हैं, जो जो मंगे ठाकर आपने ते सोई सोई देवा है। महाराज कृपाल कहानी सुनाते होंगे भी एक राजा इथों किसी बाहरले मुल्क नूं यूरोप वगैरह नूं गया, उन्हें उथों पत्र पाया, राणियां नूं कहला भेजिया भी जिस जिस किसी वस्तु की थानू जरूरत है वो संदेश दे दो, मैं ले आऊंगा। तो सब राणियां ने हार श्रृंगार दा जैसा साडा मंग हुंदी है अंदरली वैसा लिख दिता। एक राणी छोटी जिहड़ी सारियां दी नजर विच एक पगली सी, वो कहन लगी कि मैनू किसी हार श्रृंगार की जरूरत नहीं, जो तुसी घरे आ गए तो मेरे सारे श्रृंगार लग जाएंगे, औरत का श्रृंगार ही पति है, थोड़ी जरूरत है। हुण राजा जद बाहरों यूरोप दे विचों आया, वो सारियां दियां जो जो मंगियां सी वस्तुआं सब ले आया। हुण जिस राणी ने उसनों मंगया सीगा उहदे घरे जाके वो बैठ गया। हुण प्यारे जिथे राजा सीगा उत्थे किस वस्तु की कमी सी? और राणी नूं सुहाग भी मिलिया, वस्तुआं भी मिल गईयां। इसे तरह जदों असीं कोई तां कहंदा मेरी बीमारी दूर होवे, कोई कहंदा बेरोजगारी दूर होवे, कोई कहंदा मेरा मुकदमा फतेह होवे, कोई कहंदा लड़की नहीं लड़का ही होवे। तुसीं सोच के देख लो, दुनिया दीयां चीजां मंगदे हैं वो मिल जांदियां हन, इहदे विच कोई शक नहीं गा। लेकिन वो राणियां दी तरह वो वस्तुआं ले लियां, लेकिन सुहाग जिहड़ा पति परमात्मा वो तो नहीं मिलता गा। हुण एक ऐसी भी राणी हुंदी है जिहड़ी वो पति नूं मंगदी है, ਉਹਦੇ अंदर वो गुरुदेव ਉਹਦਾ पति आपदियां सारियां बरकतां लेके बैठ जाता है। इस वास्ते जिहड़ा मैं दसदा हुंदा है कि महाराज नूं मैं कहा मेरा दिल दिमाग खाली है मेरे गुरु दे अगे, क्योंकि मैं दुनियादारी वाला बंदा ही नहीं सीगा भी मैं वो तो मंगदा कुछ। जिस दरबार चो बिना मंगया सब कुछ मिलना है, जेड़ा अंदर बैठा सब कुछ जानता है, बिन बोलिया सब कुछ जानता, किस पे करी अरदास? ਇਹਦਾ मतलब यह है कि असी सियाणे हैं, वो कमला है, वो भोला है, असी सुनाउण लगे हैं कि सानू आ दे। तो जेड़े भजन सिमरन करते हैं उन्हां दा इस पासे सुपने च भी ख्याल नहीं जाता गा। उन्हां दा मतलब तो भजन करना, जो गुरु ने कहा वो हुक्म मनना है। मैं दसदा ना कि मैनू हुक्म मनन की आदत आर्मी च पई। आर्मी का बड़ा सख्त कानून हुंदा है कि सब तो पहला जो तुहानू हुक्म है वो करो, सवाल जवाब बाद में आके करो। यही है जे अगर तुसी इस लफ्ज नूं या इस तुसी ख्याल नूं लेके दिमाग विच गुरु की भगती करो, जो गुरु कहंदा असीं वो करिए, तो प्यारे फिर कमी किहड़ी बात दी है? गुरु की ड्यूटी है। फिर वो दरबार चो बिना मंगया मिलता है। पश्चिम चो एक मेम आई, मैं उदों 16 PS च हुंदा सी, वो कहंदी मेरा दिल करता है कि मैं बाले सारे बच्चे पैदा करा। तो मैं हस पिया, मैं कहा भी महाराज कृपाल दा दरबार है, जैसा कोई मंगदा उन्हें मिल जाते हैं। वो इत्थों सत्संग च भी है कई बार हासा निकल जाता देख के। तो जब गई 10 महीने बाद बच्चे 2 पैदा हुए।
तो जद असी फिर ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ गए, अजे बच्चा दूजा छोटा ही सीगा, असी फिर जो 10 महीनों बाद असी गए, एक बच्चा चक्कन वाली होर साथ रखी, एक उंगली ना लाया, तो अमरीकन तो जानते है, एक इत्थे ढूई ते रखिया, क्योंकि साडे हिंदुस्तानियां दे कोले तां ऐसा कोई चीज नहीं हुंदी, इत्थे मोढियां ते ऊं बिठाउंदे आ, इन्हां दे बनया हुंदा पिछे चोला, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਲਟਕਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। तो मैं देख के हस पिया, मैनू कहंदी आ देख हथ बंधे आ अगे वास्ते ना किते। सो प्यारिया, ये दरबार दे अंदर गुरु कृपाल जैसी जैसी किसी मंग है वैसी वैसी दे दिंदा है। जिहड़ा गुरु नूं मंगदा है उहदे कोले गुरु आ जांदा है। सो इस वास्ते आप प्यार नाल कहंदे है कि साधु संग दा की फायदा होया, मेरे अंदरों जलन निकल गई। हुण मैनू ना कोई वैरी दीदा है, सारे सज्जन ही सज्जन है, ना कोई मैनू अमरीकन अलग दिसदा है, ना मैनू कोई हिंदुस्तानी अलग दिसदा है, ना मैनू कोई औरत ही अलग दिसदी है, ना मर्द ही। सब दे अंदर संतां दी नज़र आत्मा उत्ते हुंदी है। जिन्नी एक अमीर दी इज्जत है उन्हां दे संगत दे अंदर, उन्नी एक गरीब दी भी है, जिन्नी एक मर्द दी उन्नी औरत दी भी है, क्योंकि उन्हां दी नज़र आत्मा दे उत्ते हुंदी है। आत्मा निर्दोष है, बरियाई जो है वो मन दे विच है। तो मन की रुकावट उन्होंने दूर कर ली है। मैं पहले दस्या सी कि उन्होंने अंदर मन नूं टिकाणे ते पहुंचा के मन और आत्मा की गंढ खोल के वो उस घरे चले गए जिथों कि गुरु ने निशान दिता सी। इस वास्ते आप प्यार ना कहते हैं, ना को वैरी नहीं बिगाना, सगल संग हमको बनाई। सारे संसार नूं अपना घर समझते हैं, सबना उन्हां दा प्यार है, उत्थे जाति पाति का कोई सवाल नहीं। तो गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते सानू कित्थों ज्ञान होया, ये पदार्थ बई कित्थों मिलिया, साडे गुरु की संगत विच जानना। इस वास्ते गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते महिमा साधु संग की सुनो मेरे मीता, मैल गई कोट अग हरे निर्मल भय चीता। कहने लगे जन्मा जन्मांतरां दी मैल संगत दे विच आके लहेगी, करोड़ां किस्म के पाप सी जड़े वो धोते गए, आत्मा निर्मल हो गई है। ऐसी भगत गोबिंद की कीट हस्ती जीता। मन हाथी सी, आत्मा एक कीड़ी जिन्नी कमजोर सी, ਇਹਦੇ पंजे तो आजाद हो गई, हाथी तो छुट गई। किहदी कृपा ना बई, गुरु दी नाल। बिसर गई सब तात पराई, जब ते साध संगत मोहे पाई। ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हमको बन आई। जो प्रभ कीनो सो पल मान्यो, ए सुमत साधु ते पाई। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ महात्मा की संगत ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੰਤ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕੂੜ ਝੂਠਾ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। इत्थे जिहड़ा पैदा हुंदा है उन्हें एक दिन संसार जरूर छड्डना है, चाहे कितना भी कोई वडी है, पकंबर है, हर एक अपो अपनी वारी इस संसार नूं छड्ड के जांदा है। गुरु तेग बहादुर साहब कहंदे राम गयो, अनेकां वारी इत्थे राम आके भी गया, राम गयो रावण गयो, अनेकां वारी रावण भी आके गया।
अनेका बारी कृष्ण आके गया, राम गयो, रावण गयो, जाको बहु परिवार जिन्हां दे बड़े बड़ियां लंमियां उमरां सीगियां भो के वो भी गए। कहो नानक थिर कुछ नहीं ते सुपने जो संसार। चिंता ताकि कीजिए जे अनहोनी होए, ये मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोई। इस वास्ते आप प्यार ना कहते हैं कौन भाना मनेगा बई, जिहड़ा अंदर जाता है। महाराज सावन सिंह दसदे हुंदे सीगे भी किस तरह उन्हां दा 32 साल का लड़का सी, ओवरसीयर लग्या होया सी, हालांकि कारण सी। महाराज जी तो ब्यास स्टेशन के उत्ते उन्होंने सास पूरा कराया भी मैं जे डेरे चक के गया तो उत्थे बीबी रुको सी, उन्हें कहना भी तुसी इस नूं रखो। तो कहते संतां दी गुरमुखता दे विच फर्क पैंदा है। संत उस परमात्मा दे शरीक बन के नहीं रहिंदे हुंदे गे, ओहदे पुत्र बन के रहिंदे है। पुत्र वो है जिहड़ा बाप दी कीती नूं उलझे ना, पलटे ना। तो कहन लगे उत्थे जद उहदे श्वास पूरे होए, मैं आपदे दिल नूं फरोलिया सीगा, ना उहदे विच कोई खुशी सी ना गमी सी। कहंदे भी किहदी किरपा सी? बाबा जयमल सिंह दी, जिन्हां ने मैनू उस इम्तिहान दे विच खुद ही पास किया। फिर वो कहंदे हुंदे जे बाहरों वो थापड़दा ते अंदर हथ हुंदा है। इसे तरह महाराज कृपाल ने भी आपदी जिंदगी दे विच अपना बच्चा पत्नी तोरे, और राजा राम सराफ जिहड़ा महाराज सावण सिंह दा खास प्रेमियां दे विचों सी, वो जदों शमशान भूमि दे विच महाराज जी आपदे लड़के दा संस्कार करन गए, उदों ने देखा कि ये तो इस तरह तुरया फिरदा है भी जिवें किसी दा हुंदा लड़का। उन्हां दे विश्वास नूं देख के महाराज सावण सिंह दी संगत दे विच आया। फिर उन्हें पता लग्या भी किसी पूरे गुरु दा शिष्य है। तो इस वास्ते आप प्यार ना कहते हैं सानू संगत दे विच सोझी आई। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते जो प्रभ कीनो सो भल मान्यो। असी परमात्मा दे विच नुक्स नहीं कढ़े, उन्हें जिहड़ा कर दिता। हुण तुसीं सोच के देख लो, ये उस महात्मा की बाणी है जिसनू उस वक्त की हुकूमत ने सके भरा ने सिखा के गैर मनुखी तसीहे दिते सी। गर्म रेता सिर विच पवाया तो गर्म तवी दे उत्ते बिठा दिता। लेकिन फिर भी जो इन्हां दा दोस्त आया मियाँ मीर, वो कहने लगा तू मैनू जो हुक्म दे तो मैं लाहौर दी दिल्ली दी इटां पड़वा देवां। वो कहने लगा देख भी मियाँ मीर, ये तो मैं भी कर सकता है, पर ओदा भाणा तेरा भाणा मीठा लागे ना पदार्थ नानक मांगे। इस वास्ते आप प्यार ना कहते हैं गुरु अर्जन देव जी की यह बाणी है। कहने लगे जोड़ा परमात्मा ने कर दिता वो साडे फायदे जी करता है, सो भल मान्यो। उस दे के सिर झुकाता। महात्मा सानू दस दिया जद ओदा भाणा टलदा ही नहीं तो ओदे अगे सिर नमाउण दे विच ही फायदा है। जिस ठाकर सो नाही चारा ताको कीजै सद निमशकारा। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं जिहदे अगे तुहाडा जोर नहीं चल सकता उत्थे निमशकार करने च तुसीं फायदा उठाओगे। हाँ भाई। जो प्रभ कीनो
ਸੋ ਪਲ ਮਾਨਿਓ ਇਹ ਸੁਮਤ ਸਾਧੂ ਤੇ ਪਾਈ ਸਭ ਮੈਂ ਰਵ ਰਿਆ ਪ੍ਰਭ ਏਕੋ ਪੇਖ ਪੇਖ ਨਾਨਕ ਬਿਗਸਾਈ। ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਰਾ ਕਹੀਏ? ਸਾਰੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਸਭ ਨੂੰ, ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਭ में रव ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭ ਏਕੋ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਰਬੀਲ ਆਲਮੀਨ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਰਬੀਲ ਮੁਸਲਮੀਨ, ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਲਮ ਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਵਾਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਅਰਦਾਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਮਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣਾ। ਤੋ ਇਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਈਰਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ, ਤੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਮ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਵ ਰਿਹਾ ਸਭ ਏਕੋ ਪੇਖ ਪੇਖ ਨਾਨਕ ਬਿਗਸਾਈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੁਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਮ ਝਰੋ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਸਭ ਕਾ ਚਾਰਾ ਲੈ, ਜਾਂ ਕੀ ਜੈਸੀ ਚਾਕਰੀ ਤਾਂ ਕੋ ਤੈਸਾ ਦੇ। ਫੇਰ ਸਭ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੈਸਾ ਕੋਈ ਬੀਜਦਾ ਵੈਸਾ ਵੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਈਰਸ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਬਗਾਨਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਤੇ ਚਿਰ ਆਖਦਾ ਜੇ ਚਿਰ ਹੈ ਦੋ ਮਾਹੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਇੱਕ ਪਛਾਣਿਆ ਇੱਕੇ ਮਹਿ ਸਮਾਹੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਉਨਾ ਚਿਕਰ ਅਸੀਂ ਦੁਆਏ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਇੱਕ ਪਛਾਣਿਆ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਸੇ 'ਚ ਹੀ ਸਮਾਏ, ਉਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮਕੋ ਬਣਾਈ। ਸਾਡਾ ਸਭ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀਨੋ ਸੋ ਭਲ ਮਾਨੋ, ਇਹ ਸੋ ਮਤ ਸਾਧੂ ਤੇ ਪਾਈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਉਹ ਮਤ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ ਬਈ? ਉਹ ਵੀ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਚੋਂ। ਸਭ ਨੇ ਰਵ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭ ਏਕੋ ਪੇਖ ਪੇਖ ਨਾਨਕ ਬਿਗਸਾਈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ। ਜੋ ਵਕਤ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਈਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾ ਵਾਕ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ 100 ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਅੰਦਰ ਜਾਓ, 1000 ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਭਜਨ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ। ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਨਾ ਦੇ ਲਓ, ਉਤਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤਨ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਨਾ ਦਿਓ। ਤਨ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਤਮਾ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਇਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਖੁਰਾਕ ਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਸੁਣਿਆ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰੀਏ। ਅਗਰ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਣੀਏ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਧੋਤੀ ਝਾੜ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਗਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਬ ਛੱਡੀਏ ਤਾਂ ਪਿਆਰਿਓ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਤਸੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਐਬ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਰਿਦੁਆਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੰਝੂਵਾਸ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਹਟਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੈਂਗਣ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੈਂਗਣ ਨਹੀਂ ਖਾਊਂਗਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਪਰਤਕਿਆ ਪਾਲਦਾ ਹੁਣ ਤਾਈਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸੋਚ ਲੈ। ਨਹੀਂ ਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਘੱਟ ਤੋਲਣਾ ਛੱਡ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਆਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੇਲਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੇਲੇ ਦਾ ਤੇ ਬੈਂਗਣ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਬਈ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਐਬ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਐਬ ਉਹ ਛੱਡੋ। ਹੋਰ ਨਾ ਕੇਲੇ ਨੇ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜਿਆ ਤੇ ਨਾ ਬੈਂਗਣ ਨੇ ਵਿਗਾੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਧੰਨ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਬਈ। ਹਾਂ ਬਈ। ਸਭ ਮੈਂ ਰਵ ਰਿਆ ਪ੍ਰਭ ਏਕੋ, ਪੇਖ ਪੇਖ ਨਾਨਕ ਬਿਗਸਾਈ।